જોઈને પોતે કહે છે કે આ અદ્ભુત છે, એનું વર્ણન ન થઈ શકે, એનો વિચાર પણ ના આવી શકે એવું આ બધું કામ થયું છે. કે એનો પ્રતાપ જોગી મારવાનો હોય એના સંકલ્પથી થયું અને બધાનો સંતો હરિભક્તો દેશ પરદેશના તમામ નાના મોટાએ પોતે તન મન ધનથી સેવા કરી કે જેમ દેશ માટે લોકો લડ્યા ત્યારે આગળ વધો ફતે થાય એમ આપણે પણ અક્ષરધામને માટે બધાએ ખૂબ ખૂબ કામ કર્યું છે અને ફતે આખો ઉત્સવ એવો અદ્ભુત બનાવી દીધો છે કે ત્યાં આગળ એ બધા અનંત બ્રહ્માંડોની અંદર પણ આનું ડંકો વાગશે એમ જોગી બાપાનો સંકલ્પ. આ જોગી બાપાના સંકલ્પ બહુ મોટા હતા કે આખો સત્સંગ બ્રહ્માંડમાં થાય, સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું ભજન છે આખું બ્રહ્માંડોમાં થાય. એટલે આ એમના કાર્યથી એ બ્રહ્માંડોની અંદર પણ આ બધી વાત પહોંચી છે. તો આપણે પણ એ મોટો લાભ મળ્યો, મોટા મોટો એ યોગી બાપાનો ઉપકાર માનવાનો. એ અક્ષરધામની અંદર જે કાર્ય થયું છે, સંતો હરિભક્તોનો સમ, એકતા, એક રુચિ, એક જ ધ્યેય. બધાએ ત્યારથી આપણે આ નક્કી થયું કંઈ મંદિર કરવું છે, જગ્યા મળી અને શરૂઆત થઈને ત્યારથી એક ધ્યેયથી જ બધાનું કાર્ય થયું છે. એટલે જોગીમાનું સૂત્ર જે હતું કે સંપ સુરભાવની એકતા જો આપણાની અંદર હોય તો દુનિયામાં કોઈ કાર્ય અશક્ય નથી. એટલે આજે આપણે જોઈએ છે કે આવા વિશાળ એકદમ દિવ્ય દિવ્યને દિવ્ય ચારે બાજુ જુઓ તો બીજું કંઈ જોવા જ ના મળે. ભગવાન સાક્ષાત કેટલા સરસના દર્શન થાય છે, અવતારોના દર્શન થાય છે. આ એક એક થાંભલામાં 500 સંતો, બધા દેવો દેવાલ બધા થાય. જ્યાં જોઈએ ત્યાં રામજી, બીજું ન ભાષે. જ્યાં જુઓ ત્યાં રામજી રામજી, ભગવાન ભગવાન, મૂર્તો ભક્તો બધા દેખાય છે. તો કહેવાનું શું છે કે એવું સુંદર કામ પણ થયું છે અને એ પ્રમાણે આપણને આ લાભ મળ્યો એ આપણા ભાગ્ય છે. એટલે આપણે હવે કંઈ બીજો જન્મ લેવાનો છે નહીં. આ જ જન્મે આપણું કલ્યાણ થશે, અક્ષરધામમાં પહોંચી જઈશું અને કઈ જાતનો ડગમગાટ રાખવો નહીં. મારું કલ્યાણ થશે કે નહીં થાય. છેલ્લાના 7ની અંદર વાત કરી છે કે હું ક્યાં જે એવું મારે કે એવો મનમાં વિચાર જ ના રાખવો. આપણે અક્ષરધામમાં જ જવાના છે, અક્ષરધામમાં મારા લઈ જવાના છે. એ એમના શબ્દો છે, એમાં દૃઢ વિશ્વાસ રાખવો, એમાં ડગમગ નહીં કરવાનું કે આ મહારાજ બોલ્યા સાચું છે કે આપણું કલ્યાણ થશે કે નહીં થાય એવો ડગમગાટ પણ રાખવો નહીં. જ્યાં સુધી ડગમગે દિલ ત્યાં સુધી ભ્રમના પ્રકાશે. એટલે દુનિયામાં શાંતિ થાય, દિલ્હીના આ બધા લોકોને પણ દર્શન થાય. જે બધા આપણા ભારતના છે એના બધા આવે તે એટલે જે દેશ પ્રદેશના આવશે એટલે બધા આવશે. એ ધોળાએ આવશે ને કાળાએ આવશે, બધા આવવાના છે. કારણ કે આ વાત એવી છતરાઈ થઈ છે કે દરેકને અક્ષરધામ અને વગરના અને જગત જાણે એવો પ્રચાર. આપણે કોઈ પ્રચાર કરતા થતા નથી. આપણે ક્યાં પ્રચાર કરવા ગયા? કરોડો રૂપિયાનો પ્રચાર કરે તોય ના પૂરે. પણ ભગવાનની મરજી છે તો એની મેથે પ્રચાર છે. આ પણ અહીં બેઠા બેઠા પ્રચાર કરશે, આપણે બળ રાખશે. હવે એ બધા તો સંકલ્પ છે, પણ સંકલ્પમાં ભળીને આપણે કરવું તો મહારાજ સર્વને સુખિયા રાખે એ જ પ્રાર્થના. भारतीय संस्कृति के इस भव्य परिसर में चले हम ध्वज लहराकर भारत माता की वंदना के साथ महानुभावों का अभिवादन करें. वंदे भारत मातरम. दिव्यं भव्य भव्याति भव्यम् इंद्रप्रस्थ यमुना तटरम्यम्. स्वागतं 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 अक्षरधाम में आपका स्वागतम्. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. अक्षरधाम में आपका स्वागतम स्वागतम स्वागतम. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम.
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सर्वतीर्थमय सर्वदेवमय अक्षरधाम वंदे स्वामिनं वंदे स्वामिनं वंदे स्वामिनं वंदे स्वामिनं वंदे स्वामिनं वंदे स्वामिनं दिव्यं भव्य भव्याति भव्यम् इन्द्रप्रस्थ यमुना तटरम्यं स्वागतं स्वागतं स्वागतम् अक्षरधाम में आपका स्वागतम 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 अक्षरधाम में आपका स्वागतम अक्षरधाम में आपका स्वागतम अक्षरधाम में आपका स्वागतम। अब राष्ट्रगीत का गान होगा। राष्ट्रगीत का सम्मान करें, राष्ट्र भावना का आदर करें। भारत माता की। स्वामीनारायण अक्षरधाम सत्यम शिवम और सुंदरम है। स्वामीनारायण अक्षरधाम सत चित और आनंदमय है। आइए आज के इस अवसर पर सबसे पहले अक्षरधाम का दार्शनिक मर्म जाने पूज्य विवेक सागर स्वामी जी के संबोधन से। पूज्य विवेक सागर स्वामी जी। भगवान स्वामीनारायण ने अक्षर के दो स्वरूप बताए, एक दिव्य धाम और दूसरा भगवान की सेवा में मुख्य परिचारक के रूप में। जैसे राधा कृष्ण की सेवा में, जैसे सीताराम की सेवा में मुख्य परिचारिका के रूप में है, वैसे अक्षर ब्रह्म भगवान की सेवा में मुख्य परिचारक के रूप में है। हमें कृष्ण नहीं होना है, लेकिन राधा रूप होकर कृष्ण की भक्ति करना है। हमें राम नहीं होना है, लेकिन सीता रूप होकर राम की भक्ति करना है। वैसे हमें अक्षर रूप होकर भगवान की भक्ति करना है। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया, ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म रूप होता है पर ब्रह्म की भक्ति को प्राप्त करता है। और गीता में यही बात बताई, ब्रह्मभूतः प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्म रूप होकर भगवान की भक्ति हम करते हैं। अभी एक प्रश्न होता है कि अक्षर रूप कैसे होना। जैसे हमें डॉक्टर बनना है तो हमारा गुरु डॉक्टर चाहिए, तो हमें अक्षर रूप होना है तो हमारा गुरु अक्षर ब्रह्म चाहिए। इसलिए भगवान स्वामीनारायण 225 वर्ष पूर्व भगवान स्वामीनारायण अपने साथ अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी के रूप में इस पृथ्वी पर लाए और उसकी अक्षुण्य परंपरा में, गुरु परंपरा में ये अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। प्रमुख स्वामी महाराज आज हमारे सामने उपस्थित है। उनका मन कर्म वचन से हम संग करेंगे तो हम भी अक्षरूप हो जाएंगे। हमारे सभी प्रश्नों का निराकरण हो जाएगा, शांति हमें प्राप्त हो जाएगी। उस पर हम चलो चले हम अक्षरधाम, स्वामीनारायण अक्षरधाम, परम शांति का चरम विराम, स्वामीनारायण अक्षरधाम। स्वामीनारायण भगवान की। अक्षरधाम हमारे परंपरागत भारतीय दर्शन का स्वरूप है।
जिस देश की जय गाथाएं विश्व भर में गूंज रही है वह हमारा भारत देश और हमारी भारतीय संस्कृति युगों से जगत गुरु के पद पर आसीन है। आइए भारत के उन गौरवपूर्ण प्रदानों की एक चिरंतन स्मृति लेकर स्वामीनारायण अक्षरधाम प्रस्तुत हुआ है। चलें इसकी एक झलक देखें। भारत खेती और सिंचाई की सबसे प्राचीन भूमि, सुजलाम सुफलाम इस धरती पर 10,000 वर्ष पहले 20 प्रकार के धन धान्य की खेती होती थी। सभ्यता के इतिहास में ऋतुओं के ज्ञान के साथ खेती का ज्ञान सिद्ध करने में भारतीय लोग सबसे पहले थे और लोकशाही की जन्मभूमि थी भारत। यहां गणतंत्र स्वराज्य का आरंभ हुआ था वैदिक समय में। वैदिक जनपदों में हजारों वर्ष पहले भी चुनाव होते थे। और अंतरिक्ष विज्ञान की पहली किरण निकली थी भारत से। विश्व के कई देश अज्ञान की निद्रा में सोए हुए थे। तब भारतीय ऋषि सूर्य और चंद्र की उस पार नक्षत्रों को नाप रहे थे। सूर्य और चंद्र की गति, पृथ्वी का व्यास, ग्रहण, गुरुत्वाकर्षण आदि कई खोज भारत की देन है। गणित और अंकशास्त्र का उद्भव हुआ था भारत में। इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि 0 और 1 से 9 तक सभी अंकों की खोज भारतीयों ने की है। दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम, वो भी भारत की देन है। विश्व के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे प्राचीन महाकाव्य हैं रामायण तथा महाभारत। महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि के ये अमर प्रदान है। और अब स्वास्थ्य का क्षेत्र। भारतीय आयुर्वेद विश्व का सबसे प्राचीन आरोग्य विज्ञान है। कई महान विज्ञानियों का प्रदान दिया है आयुर्वेद ने। महर्षि चरक विश्व के सर्वप्रथम फिजिशियन थे जिन्हें 1 लाख औषधियों का ज्ञान था। और महर्षि सुश्रुत विश्व के सर्वप्रथम प्लास्टिक सर्जन थे जिन्होंने 2600 वर्ष पहले 300 प्रकार की शल्य क्रियाओं में कौशल्य पाया था। इस देश में ट्रांसप्लांट सर्जरी होती थी। आरोग्य के क्षेत्र में विज्ञान परिषदें भी आयोजित होती थी हजारों वर्ष पहले ऋग्वेद के समय में। भारत ने शिक्षा की सबसे पहली ईंट रखी थी इस धरती पर। आज से 10,000 वर्ष पहले यानी वैदिक गुरुकुलों के समय में। तो विश्व की सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी का जन्म भी यहीं हुआ था। तक्षशिला विश्व की सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी, जहां भारत एवं कई देशों के 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। यहां अर्थनीति, राजनीति, शस्त्र विद्या आदि 64 विद्याएं पढ़ाई जाती थी 2500 वर्ष पहले। और योग समस्त मानव जाति के लिए हमारे देश का एक अमूल्य उपहार। योग एक प्राचीन जीवन विज्ञान 2500 वर्ष पुराना, जो शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ बनाता है, शांति देता है। न केवल भौतिक विद्याएं
किंतु गहन चिंतन, दर्शन और उन्नत भावनाओं की यह भूमि है जिससे समस्त मानव जाति का उत्कर्ष हो सकता है। जैसे कि यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है। संकल्प से लेकर सर्जन तक अक्षरधाम की इस निर्माण यात्रा के सदा के साक्षी पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी से नम्र निवेदन कि चलें आप भी हमें अक्षरधाम की गाथा सुनाएं। पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी। आज से करीब 225 साल पहले भगवान स्वामीनारायण का इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ और उनकी संत परंपरा में आज से करीब 100 साल पहले ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने इस संस्था की स्थापना की। उनके शिष्य ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज महान संत थे, वचन सिद्ध पुरुष थे, आर्षदृष्टा थे। उन्होंने आज से करीब 35 साल पहले संकल्प किया कि दिल्ली में यमुना तट पर बहुत बड़ा भगवान स्वामीनारायण का दिव्य पवित्र तीर्थधाम बने। जैसे महान जो गुरु है उनका जो संकल्प है वह महान शिष्य ही पूरा कर सकते हैं, तो ऐसे योगी जी महाराज प्रमुख स्वामी महाराज ने हजारों संतों और भक्तों को प्रेरणा दी। तो सब जो संतगण और हरिभक्तगण सब ने अपना जो प्रयास प्रमुख स्वामी महाराज